انڈیا کے معروف نغمہ نگار گلزار اور اداکارہ راکھی جن کی راہیں جدا ہوئیں مگر محبت برقرار رہی. انسان کسی بھی شعبے میں قابلیت، محنت اور لگن سے ایک خاص مقام حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مختلف شعبوں میں ہاتھ ڈالے اور ان سب میں خاص مقام حاصل کرے تو ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ایک شخص انڈین سینما کے نغمہ نگار اور فلم ساز گلزار ہے. اگر اب گلزار کے کام کے دائرے پر نظر ڈالیں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص اتنی متنوع چیزوں پر مسلسل کیسے کام کر سکتا ہے. وہ بغیر تھکے اور خود کو دہرائے کام کرتے رہے، اور کام بھی ایسا کہ کہیں کوئی کمی نہیں. ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن گلزار نے بخوبی انہیں انجام دیا ہے. 18 اگست کو گلزار نے اپنی 89ویں سالگرہ منائی. وہ اس عمر میں بھی فعال ہیں اور تقریباً 6 دہائیوں کے طویل وقفے میں گلزار بدلتے وقت اور نوجوان نسل کے جوش و خروش دونوں کے ساتھ ہم آہنگ رہے. ہم سب کے پیارے جس بالی ووڈ میں ہر جمعے کو سٹار بنتے اور بکھرتے ہیں، وہاں 6 دہائیوں تک اپنا تسلط قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں. ان کے اپنے ہی الفاظ میں وہ ایک 89 سالہ محبوب ہے. مگر گلزار ایک دن میں سب کے محبوب نہیں بنے. پاکستان کے شہر جہلم میں دینا میں پیدا ہونے والے سمپورن سنگھ کالرا میں زندگی کی مشکلات نے سنجیدگی پیدا کی اور اس نے انہیں ایک ایسے فنکار میں تبدیل کر دیا جو منطق اور تخیل کی کسوٹی پر الفاظ اور آواز کا ایسا جادو باندھتا ہے جس میں آپ ڈوب جانا چاہتے ہیں. نغمہ نگار، سکرپٹ رائٹر اور فلم ڈائریکٹر گلزار جب وہ گیت لکھنے پر آئے تو پہلا ہی گیت مورا گورا انگ لئی لے موہے شام رنگ دے لکھ ڈالا، جس نے اپنا گہرا رنگ مرتب کیا. اگر اب سکرین پلے پر نظر ڈالیں تو آنند جیسی فلم نظر آتی ہے جس کا ہیرو ہر لمحہ ہنستے ہوئے موت کے لیے تیار نظر آتا ہے. جب فلمیں بنتی ہیں تو وہ آندھی اور موسم کی شکل میں نظر آتی ہیں، جہاں جذبات کی لہر اپنے عروج پر نظر آتی ہے. ٹی وی سیریلز کی بات کی جائے تو مرزا غالب کا شاہکار سامنے آتا ہے. مرزا غالب ٹی وی سیریل کی حیثیت بڑے پردے پر فلم مغل اعظم جیسی ہے. بچوں کے لیے لکھا گیا گیت جنگل جنگل بات چلی ہے، پتہ چلا ہے، امر ہے، چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. اس سب کے درمیان گلزار وقت نکال کر شعر و شاعری اور کہانی نویسی میں اپنی روشنی بکھیرتے ہیں. یہ اپنے آپ میں کسی اعجاز سے کم نہیں کہ گلزار اپنی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں استعمال کر سکتے ہیں. ان سب کے درمیان اگر آپ انہیں کہیں بھی کسی بھی موضوع پر بولنے کے لیے کہیں تو وہ بغیر کسی تیاری کے گھنٹوں بول سکتے ہیں. وہ بھی اس طرح کے ہزاروں نشستوں والے تھیٹر ہال میں خاموشی چھائی رہے. ان کی زبان اور ان کے حوالہ جات ہندی اور اردو کے شربت میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور وقفے وقفے سے تالیاں گونجتی رہتی ہیں. گلزار کا یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان انڈیا چلا آیا اور ان کے والد نے گھر چلانے کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کرنا شروع کر دیے. گلزار تقسیم کے دور کے تشدد کو برسوں تک نہیں بھول سکے. اس وقت ان کی عمر 11-12 سال تھی. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا. راتوں رات لاکھوں لوگ برباد ہو گئے. نوجوانی کے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے. گلزار کے اندر بھی یہ سارا واقعہ ایک خطرناک منظر کی طرح الفابلتا رہا، سلگتا رہا ہے. اسی لیے گلزار لکھتے ہیں، آنکھوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی. میں بند آنکھوں کے ساتھ روز سرحد پار کرتا ہوں. اسی لیے جب وہ فلم ماچس بناتے ہیں تو ان کا درد اس طرح چھلکتا ہے، چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں جہاں تیرے پیروں کے کنول گرا کرتے تھے. گاڑیوں کو پینٹ کرنے والے گلزار کا فلمی دنیا میں قدم، لیکن گلزار اس درد تک محدود نہ رہ سکے. وہ کہتے ہیں کہ اب وقت کے ساتھ یہ سمجھ آ گئی کہ کم کہنے کا مطلب زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ کہنا معنی کو کمزور کر دیتا ہے. اسی لیے یہی گلزار جب موج مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں، گولی مارو بھیجے میں بیجا شور کرتا ہے. جب گلزار محبت کا گیت لکھتے ہیں تو یہ میں نے تیرے دکھ کی ڈلی اٹھا کر زباں پر رکھ لی ہے، دیکھو میں نے یہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میں قطرہ قطرہ جی رہا ہوں. گلزار کو بچپن سے ہی شعر و سخن سے شغف تھا. گلزار کے والد کا ماننا تھا کہ شاعری کہانیاں لکھ کر معاش نہیں کمایا جا سکتا. اسی لیے وہ گلزار کے لیے اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ اب وہ اپنے بھائیوں سے قرض مانگے گا اور گرودوارے کے لنگر میں کھانا کھائے گا. 1950 میں گلزار اپنے بھائی کی مدد کے لیے ممبئی آئے. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ فلمی دنیا میں کام کریں گے. شروع میں انہوں نے موٹر گیراج میں کام کیا جہاں وہ حادثات کا شکار گاڑیوں کو پینٹ کرتے تھے.
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया की तरफ माइल होते गए। गुलजार उन दिनों के फिल्मी नगमा निगारों में से एक राजिंदर कृष्ण के घर किरायादार के तौर पर रहा करते थे। बाईं बाजू के रुझानात की वजह से गुलजार शीलिंदर जैसे गीतकारों से राब्ते में आए। बाद में वो बमल राय के मुआविन के तौर पर काम करने लगे, लेकिन लिखना शुरू न किया। शीलिंदर ने सबसे पहले उन्हें बमल राय की फिल्म के लिए गाने लिखने की तरगीब दी और बमल राय के साथी दीबोसीन ने गुलजार नाम की तजवीज पेश की। इस तरह 1963 में फिल्म बंदनी के गीत मोरा गोरा अंग लईले मोहे श्याम रंग दे ने बताया कि गुलजार फिल्म इंडस्ट्री में तवील अरसे तक रहने वाले हैं। बमल राय की मौत के बाद गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी के मुआविन बन गए। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के स्क्रीन प्ले और गानों ने गुलजार को बेहद कामयाब बनाया। इसमें आशीर्वाद आनंद और गड्डी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। गुलजार को आनंद के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन वो इतने नर्वस थे कि इसे वसूल करने के लिए स्टेज तक नहीं जा सके। ताहम बाद में उन्हें ये अवार्ड हासिल करने के लिए 19 मरतबा स्टेज पर चढ़ना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि गुलजार को अपने पहले एजाज के बाद अवार्ड्स लेने की आदत पड़ गई। कामयाब तजुर्बात का दौर ऋषिकेश मुखर्जी की मुआवनत के बाद गुलजार भी बतौर हिदायतकार काफी कामयाब हुए। उनकी फिल्मों में मेरे अपने, प्रीचे, कोशिश, अचानक, माचिस और आंधी जैसी फिल्में शामिल हैं। माचिस के बाद गुलजार ने फिल्म डायरेक्शन को खैरबाद कह दिया और गाने लिखने लगे। चुनांचे चंद ही सालों में उन्होंने सलिम डॉग मिलीनियर के लिए ऑस्कर जीत लिया। बेड़ी जल ले से लेकर दिल तो बच्चा है जी तक गुलजार को ज्यादा तजुर्बात करते हुए देखा गया और वो इसमें खासे कामयाब रहे। गुलजार उम्र के आखिरी मरहले में हैं, इसलिए इन दिनों वो अपनी सेहत पर काम कर रहे हैं। नज़में लिखना, राबंद्रनाथ टैगोर की नज़मों का तर्जमा करना। 4 दहाई कबल अपनी बेटी बोस्की यानी मैघना के लिए बोस्की का पंचतंत्र लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने अपने नवासे के लिए पंचतंत्र नए सिरे से लिखा था। ये बात गुलजार की पूरी जिंदगी में साफ नजर आती है कि वो वक्त के साथ खुद को बदलते रहे। इसकी तवज्जो असली तब्दीलियों से कभी नहीं हटी, वो भी जब उनकी अपनी जिंदगी में तूफान आया। दरअसल आज से 50 साल कबल 18 अप्रैल सना 1973 को गुलजार और राखी की मोहब्बत की शादी हुई थी। इस शादी में इस वक्त के इंडियन सिनेमा की दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियत मौजूद थी। शादी और अलहदगी गुलजार की बेटी और फिल्मसाज मैघना गुलजार ने अपने वालिद की जिंदगी पर एक किताब बिकाज ही आज लिखी है। इसमें मैघना ने बताया है कि सनील दत्त राखी के भाई कैसे बने और शादी SD बर्मन और GPCP फैमिली की निगरानी में हुई। मैघना ने मां राखी और वालिद गुलजार दोनों की 1968 में पहली मुलाकात से लेकर उनकी अलहदगी तक की तफसीलात लिखी है। दिलचस्प बात यह है कि 5 साल की सोहबत के बाद ये शादी सिर्फ 1 साल तक चल सकी और 1974 में राखी और गुलजार दोनों अलग हो गए। लेकिन इसके बाद के 49 सालों में दोनों ने एक दूसरे का इस तरह साथ दिया कि मालूम ही नहीं होता कि दोनों अलहदा रह रहे हैं। 45 साल की अलहदगी के बाद अगस्त 2020 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में राखी ने कहा, हम दोनों को अलग अलग रहने वाले बेहतरीन जोड़े का अवार्ड मिलना चाहिए। हम ज्यादातर शादीशुदा जोड़ों से ज्यादा हम आहंगी से रह रहे हैं। गुलजार और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। वो अब भी मुझे अपनी बीवी समझता है। जैसे ही इसका फोन आता है कि मैंने दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया है और खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे जल्दी से झींगे का सालन भेज दो, और मैं जल्दी से ऐसा करती हूँ। मैं उनकी पसंद की खीर बनाती हूँ और भेज देती हूँ। मुझे ये सब पसंद है। दूसरी जानिब बेटी की किताब की रूनुमाई के मौके पर गुलजार ने याद करते हुए कहा कि जब हमारा प्यार शुरू हुआ तो मैं इसे साड़ियां तोहफे में दिया करता था। ऐसा करते हुए मैं साड़ियों से मानूस हो गया, बेहतरीन साड़ियां तोहफे में देता था और आज भी तोहफे देता हूँ। ऐसे में मैघना की पैदाइश के 1 साल बाद दोनों क्यों अलग हो गए? मैघना ने तफसीलात नहीं लिखी हैं, ताहम बताया गया है कि राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी और गुलजार को लगा कि मां बनने के बाद फिल्मों में काम करना दुरुस्त नहीं होगा। फिल्म आंधी की शूटिंग के दौरान इस बात को लेकर दोनों के दरमियान काफी लड़ाई हुई, वो भी इस वक्त जब यश चोपड़ा ने राखी को कभी कभी में काम करने की पेशकश की। गुलजार के इनकार के बाद भी राखी ने जब फिल्म साइन की तो दोनों ने रास्ते जुदा कर लिए, लेकिन मोहब्बत बरकरार रही। और मैघना बताती हैं कि मेरी मां राखी ने पिनवेल में इसी जगह एक फार्म हाउस खरीदा जहां वो पहली बार गुलजार से मिली थी।
अच्छी बात यह हुई कि अलग रहने के बाद भी गुलजार और राखी दोनों ने अपनी बेटी पर उसका असर नहीं होने दिया और न ही अपने पेशा वराना काम में कोई कमी महसूस की। क्रिकेट से मोहब्बत इस मरहले पर आज भी गुलजार के लिए कुछ चीजें नहीं बदली है। मुंबई में रहने के बाद भी गुलजार सुबह 5 बजे उठते हैं। कहा जाता है कि वो सूरज को जगाना चाहते हैं इससे पहले कि सूरज उन्हें जगाए। गुलजार का दिन हर रोज बेदार होने के बाद बांद्रा के जिम खाना क्लब में टेनिस खेले बगैर शुरू नहीं होता। टीवी पर जब टेनिस और क्रिकेट के मैच आते हैं तो गुलजार कोई और काम नहीं करते। वो रॉजर फेडरर, आंद्रे ओगिसी और जॉन मैकनरू जैसे स्टार्स के मद्दा रहे हैं। साथ ही क्रिकेट के मैदान में वो सुनील गावस्कर और वसीम अकरम के मद्दा रहे हैं। गुलजार का क्रिकेट से लगाव इतना गहरा है कि वो ख्वाबों में कई बार खुद को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। उन खुसूसियात के अलावा अवामी जिंदगी में गुलजार की शख्सियत के 2 और अहम पहलू हैं। वो हमेशा सफेद कपड़ों में ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, इसके जवाब में गुलजार ने नसरीन मानो कबीर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो दूसरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अजनबी आकर कंधे पर बैठ गया है। से बेहद लगाओ। उसके अलावा वो हमेशा उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में लिखने की वजह से उनके गाने और स्क्रिप्ट कम ही लोगों को पढ़ने को मिलते हैं और कोई उनके ख्यालात चारा नहीं पाता। ताहम ये अलग बात है कि खुद गुलजार पर दूसरों की नकल करने का इल्जाम लगा है, चाहे वो गाना इब्न बतूता पहन के जूता हो या ससुराल गिनिदा फूल। गुलजार ने गालिब के शेरों का इस कदर इस्तेमाल किया है कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें गालिब के नाम पर पेंशन मिल रही है जो गालिब को खुद नहीं मिल सकी। गुलजार ने लिखा है कि गालिब का कर्ज लेना और कर्ज अदा न करने के बहाने ढूंढना फिर अपनी खिफत का इजहार मुझे जज्बाती तौर पर गालिब के करीब ले जाता है। ताहम उन्होंने बार बार साबित किया है कि वो नकल करने में भी बहुत कामयाब रहे। गुलजार की शख्सियत में एक और खास बात है, पुरसुकून और शरीफ नजर आने वाले गुलजार को तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की आदत है और इस शौक को पूरा करने के लिए वो गाड़ी लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव्स पर निकल जाते हैं। इन तमाम कामयाबियों में गुलजार के सफर ने बड़ा किरदार अदा किया है। वो फिल्मी दुनिया के इन चंद लोगों में से एक होंगे जिन्होंने गाड़ी से इंडिया के कोने कोने का सफर किया है। बरसों तक उन्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने से ग्रेज करते रहे। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया को देखना और समझना चाहा तो उन्होंने अपने पाजामे और कारती में दूसरे ममालिक देखे। लेकिन हम सब गुलजार को उनके नगमों और उनकी फिल्मों के लिए पसंद करते हैं, उनकी शायरी और नज़मों के लिए, उनकी कहानियों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। गुलजार पहले ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल कर चुके हैं जो उनकी फिल्मी दुनिया में खिदमात का एतराफ है।